Hello everyone. So today we are going to start with the first unit of the actual information technology syllabus. This PDF is downloaded from the authorized CBSE website in which the draft study material is given. So the first unit of the information technology that we are going to see is the digital documentation, which is of the advanced level. In ninth standard, all of we have seen the basic level of the digital documentation in which we have learnt about certain basic things related with the digital documentation. Now all of we know that for digital documentation we are going to make use of the text editor or text document software or the application program from the open office platform. So one by one we are going to see the uh, terms related with that digital documentation. I'm going to share the YouTube links of the practical execution videos of the same session that we are going to cover in this video. So let us begin. We are going to see the session number 1, create and apply styles in the document. So let us begin with the session number 1. Create and apply styles in the document. Now look, a style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. When you apply a style, you apply a whole group of formats at the same time. Now look, what is style over here? What do you mean by style? So look, here in this first line, you are observing the session 1, create and apply styles in the document. If you observe, all the letters are capital over here. The underline is applied, background color is applied. Means what? They have applied certain style to the title. After that, if you observe the paragraph, the common text which is typed over here, if you observe from this to the last line of the paragraph, if you observe, all the letters are appearing to be in one single format. We can say the Times New Roman is the font name applied. Particular size, for example 12 size of the font is applied over here. Okay, so what is that? Actually all the collections of the attributes is known as the style. Now let us see what is the actual definition of the styles. Styles are logical attributes. Styles are logical attributes. Why do we call it as a logical attribute? Look, using a style means that you stop saying font size 14, Times New Roman is the font name, bold and centered bold style is applied to the text and centered alignment is applied. Okay, so instead of saying that, मतलब इतने सारे चीज़ें आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है स्टाइल बोलते वक्त. यू कैन नॉट you know there is no actually need to mention the all attributes that we are going to apply to the text. मतलब font size इतनी होनी चाहिए, उसके बाद font name क्या होना चाहिए, वो bold है या italic है या फिर उसकी alignment क्या है, ये सब डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है. स्टाइल्स का मतलब क्या है? आप जस्ट एक पर्टिकुलर स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल टाइटल, आपको एक टाइटल देना है तो टाइटल आप कैसे दोगे? हियर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन how the title will be given. Here the example, look at the text which is enclosed within that bracket, all the letters are capital, then background color is applied, underline is applied, all are bold. Means what? This is the particular style that is decided by someone who wants to give the title to that particular document or to the particular paragraph. तो इसका मतलब देखो, एक्चुअली स्टाइल्स
लॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्यों है उसका अगर हमने एक एग्जांपल लिया तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो आप अगर देखते हो बर्थडे का अगर बैनर आप देखते हो, बर्थडे के बैनर में आप ज़्यादा कलर्स ऑब्जर्व करोगे. ओके, मीन्स व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैनर, वो बैनर किसके लिए बनाया गया है, वेदर इट इज़ फॉर एनी बर्थडे सेलिब्रेशन और वेदर इट इज़ शोइंग सम फ्यूनरल ऑफ एनी पर्सन, और जो आप बोलते हो ना अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका बैनर जो रहता है, इफ़ यू ऑब्जर्व व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम, द डिफरेंस विल बी जो बर्थडे का बैनर होगा उसमें बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट भी उसमें यूज़ हो सकता है. बट इन केस ऑफ द डेथ बैनर में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो डेथ बैनर में आपको एक सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फॉन्ट, सिंपल, ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ नहीं होंगे उस बैनर में. अदरवाइज बर्थडे के बैनर में क्या होता है, डार्क कलर्स यूज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स कलरफुल किया जाता है. मीन्स व्हाट, इन ऑर्डर टू शो द सेलिब्रेशन the style will be different, and in order to show the in case of the death banner it will show some sorrowness, so at that time the styles will be very simple one. Okay, colors भी उधर light colors का use होगा. सो इन दैट वे वी कैन से स्टाइल्स आर द लॉजिकल एट्रीब्यूट, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो जो एट्रीब्यूट्स अप्लाई करोगे दैट विल बी वेरी. नाउ देखो, इंस्टेड ऑफ सेइंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, बोल्ड या सेंटर अलाइनमेंट, ऐसा आप अभी इसके आगे नहीं बोल सकते. आप अगर स्टाइल्स के बारे में बोलोगे तो आप एक पर्टिकुलर उसको टाइटल दोगे. फॉर एग्जाम्पल टाइटल इज द स्टाइल, तो बिकॉज यू हैव डिफाइन द टाइटल स्टाइल टू हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टाइटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखे हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉन्ट साइज से सेंटर अलाइनमेंट तक, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए हैं. इसका मतलब है आपने सिर्फ अगर टाइटल ही बोला तो ऑटोमेटिकली आपकी ये पर्टिकुलर स्टाइल उधर अप्लाई हो जानी चाहिए. दैट इज द स्टाइल. ओके, नाउ स्टाइल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट. स्टाइल अप्लाई करने से क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी आ जाती है आपके डॉक्यूमेंट में, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी, मतलब टाइटल के लिए आप एक पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई करोगे तो हर जगह पे आपको वही स्टाइल अप्लाई आप कर सकते हो. देयर विल बी नो एनी इनकंसिस्टेंसी इन द टाइटल. इफ यू वांट टू keep the text in a particular format, at that time also you can apply a particular style. देखो अभी इधर इस डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी आप किधर दिखाई देगी, वो देखो. आपने अगर ये टाइटल देखा सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, अभी नेक्स्ट सेशन जहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको सेम स्टाइल उधर आप ऑब्जर्व करोगे. सेकंड जो सेशन है ना, लेट मी जस्ट चेक, यस हियर यू कैन ऑब्जर्व द सेम स्टाइल इज अप्लाइड. इसका मतलब क्या, उसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट में एक कंसिस्टेंसी आ जाती है. ओके, आपकी डॉक्यूमेंट एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट उधर दिखाई देगी. सो दैट इज वाई वी विल अप्लाई द स्टाइल्स. नाउ which are the various styles that are applicable to the OpenOffice, or OpenOffice supports which types of styles that we are going to see. Page styles. Here in the page style you can apply the margin, header, footer, borders and background. In case of the Calci, मतलब जो Excel से similar सॉफ्टवेयर है,
एक्सेल से सिमिलर जो प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम है उसमें आप पेज स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग शीट्स. देन पैराग्राफ स्टाइल. इन ऑर्डर टू वर्क विद द पैराग्राफ का अपीयरेंस लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसके बाद जो टैब स्टॉप पोजीशन रहती है, मतलब कितना पैराग्राफ आपको, कितना मार्जिन आपको एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में रखना है, उसके लिए भी आप टैब स्टॉप का यूज़ कर सकते हो. उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, देन बॉर्डर्स है, विच कैन इंक्लूड द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑल्सो. नेक्स्ट कैरेक्टर स्टाइल्स. कैरेक्टर स्टाइल्स एक्चुअली ये आपको आप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट द पैराग्राफ एंड यू कैन अप्लाई द कैरेक्टर स्टाइल्स. जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, उसके बाद बोल्ड इटैलिक ये फॉर्मेट है, अंडरलाइन का फॉर्मेट है, वो आप कैरेक्टर से सिलेक्ट कर सकते हो. देन द फ्रेम स्टाइल्स. These are used to format the graphic and text frames. ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल फ्रेम्स का यूज़ आप फ्रेम स्टाइल्स में से कर सकते हो. जनरली जब आप फ्रेम इंसर्ट करोगे तभी आप वो फ्रेम स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो. देन द नंबरिंग स्टाइल. बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको पता है, जब आप वो अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको किस तरह की स्टाइल चाहिए वो आप नंबरिंग स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हो. देन सेल स्टाइल्स. ये जनरली जो कैलसी है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशन, तो उसमें सेल स्टाइल्स का यूज़ होता है. एट अ टाइम यू कैन अप्लाई मेनी एट्रीब्यूट्स लाइक फॉन्ट, alignment, border, background, number formatting like currency or date, and then the cell protection, etc. These things you can apply in the cell styles. Then the graphic styles. Graphic styles in drawing and presentation, which include the line, area, shadowing, transparency, font, connectors, dimensioning and other attributes. तो ये सब आप ग्राफिक स्टाइल्स में अप्लाई कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट द प्रेजेंटेशन स्टाइल. ये एक्चुअली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सिमिलर जो प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम है उसमें आपको ये प्रेजेंटेशन स्टाइल्स ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगे. ओके. देन हाउ विल यू अप्लाई द स्टाइल्स? फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू शेयर different video link with you in which I am going to explain you about the styles and formatting window. तो ये जो styles and formatting window है ये आप इधर ऑब्जर्व कर रहे हो. ऐसी विंडो हम एक्चुअल ओपन करेंगे और स्टाइल्स अप्लाई करके देखेंगे. ओके. तो उसमें देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है. पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल. लिस्ट स्टाइल मतलब ये नंबर स्टाइल से रिलेटेड है. And then the fill format. Also you can have the new style. You can create your own style and you can apply the style. Then using of the fill format mode. What is the purpose of it? In order to apply fill format mode, it will help you to apply the style to many different areas quickly without having to go back to the style and formatting window and double click every time. मतलब आपको मैन्युअली वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार स्टाइल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप फिल फॉर्मेट से इमीडिएटली आप वो स्टाइल पिकअप कर सकते हो. एक्चुअली जब प्रैक्टिकल आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा. ओके. नेक्स्ट, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल. आपको अगर नई स्टाइल अप्लाई करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो? फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स you have to select creating new styles option. Okay. Or new styles from selection option. So what you have to do, you have to open the styles and formatting window and choose the type of style you want to create.
Second, in the document, select the item you want to save as a style. And third, in styles and formatting, click the new style from selection icon. मतलब इधर आपको एक्चुअली क्या करना है, देखो प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, आप पहले एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दोगे, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर दोगे, और वो जो अप्लाइड चीज़ें है, वो अप्लाइड चीज़ें आप क्या करोगे, आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से आप नई स्टाइल सिलेक्ट कर अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब फॉर्मेटिंग पहले आपको अप्लाई कर देनी है, उसके बाद वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, और फिर आपको स्टाइल डिफाइन करनी है एंड अप्लाई करनी है। ओके, नेक्स्ट, one create style dialog box will appear. In that we have to name the style that we have created from the selection. Okay, practically आप जब देखोगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। Then dragging and dropping, तो आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, मॉडिफाई स्टाइल, अगर आपने जो भी स्टाइल क्रिएट की है उसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की तो उसको हम कहेंगे मॉडिफाइंग स्टाइल। एक्चुअली जब आप वो मॉडिफाई करोगे तो आपको वो अपडेट करनी पड़ेगी। ओके, दैट ऑल्सो प्रैक्टिकली वी विल सी। देन हाउ टू अपडेट द स्टाइल, तो आपको वो जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करनी, ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन द डॉक्यूमेंट and select the item that have format you want to adopt as a style. In styles and formatting window, select the style you want to update. तो आपने जो स्टाइल क्रिएट की है वो स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर कुछ चेंज किया उसमें तो वो चेंज करने के बाद आपको ये देखो इधर ऑप्शन जो है अपडेट स्टाइल वाला, वो अपडेट स्टाइल वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। देन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टाइल्स अवेलेबल है या टेम्पलेट अवेलेबल है तो वो भी आप लोड कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में। देन व्हाट एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म, राइट योर रेज्यूमे, बायोडाटा एंड अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स ऑन इट, क्रिएट अ पैम्पलेट ऑन साइबर अवेयरनेस, apply different styles on it. Okay, now as per your convenience you can perform it. Then the questions, what are styles, what are the advantages of using styles? Now what is styles? Styles are the logical attributes that you can perform as per your requirement. And what are the advantages of using style? By using styles we can we can apply the styles immediately। मतलब आपने ये देखो स्टाइल अगर आपने डिफाइन की है तो आपको 4 डिफरेंट ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, देन सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद पैराग्राफ सेटिंग या फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब चीज़ें आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसकी वजह से आपने अगर एक बार आपकी स्टाइल सेट कर ली तो वो आप स्टाइल पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए आपने अगर वो अप्लाई कर दी तो 5 डिफरेंट ऑपरेशंस आपको एक ही स्टाइल अप्लाई करने से परफॉर्म हो जाएंगे। गिव एनी 4 स्टाइल्स सपोर्टेड बाय openoffice.org। तो 4 स्टाइल्स वी कैन से द नंबर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, then the character style, page style. These are the various styles available or supported by the OpenOffice. How can we create our own style? How can we create our own style के लिए इधर आपको explanation दिया है, creating a new style from selection। तो ये steps आपको लिखने हैं। Understood? So for today we will stop over here. I am going to share the actual practical execution videos with you with the same video. Thank you.